and last day by Professor Gopinath Sharma ji, that in democratic and diversified country like India, everyone is a multilingual. Recommendation of Kothari Commission 1986 policy has given due importance to the language component, and the above assumptions have forced NCT to introduce one paper in B.Ed curriculum, that is a language across the curriculum. So my paper is related with that paper, language across the curriculum, and tabulation related to that paper in Punjab state. Title of my paper is Tabulation related to teaching of language across the curriculum, status of teacher education colleges of Punjab. Basically, the concept of language across the curriculum is based on three tenets. One is language more than surface structure. Second one is the entire school as an environment influence the learner's language development. It is not the task of only language teacher. Each and every teacher's speaking style, teaching style affect the language of the student, and as well as the language of student influence the teacher. The third one is language play a key role in virtually all school learning. Some of the observation and informal talks with the stakeholders have provided inputs to highlight grassroots problem in this component of B.Ed 2-year curriculum. The major objective of my paper is to share turbulence related to teaching of language across the curriculum in Punjab state. In the end, I have given some suggestions. I am starting with the grassroots problem related to this paper in Punjab state. The first of all is a lack of theoretical orientation of curriculum planners. As sir was mentioning, एक पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी का नीचे तक आते थे ग्रास रूट पे उसका कुछ और बन जाता है, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल कौन होता है, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। सर ने कल भी क्वेश्चन रेज किया था, आज भी किया था। उस क्वेश्चन का जो सार है, जो थीम था, वो यही था कि पॉलिसी बनाने वाले, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड बन चुका है जहाँ पे हर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। कुछ एक्सपेरिमेंट हम पिछले 3-4 साल देख चुके हैं। 1 ईयर से 2 ईयर हुआ, अब 4 ईयर का प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर गौरव जी आए थे, उन्होंने एक और मुसीबत जो आपके सामने रखी है। सो ऐसी बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट इज अ गुड थिंग, बट विदाउट रिव्यूइंग अ लिटरेचर देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। देन फर्स्ट इज अ लैक ऑफ थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन ऑफ करिकुलम प्लानर। जस्ट सी दिस टेबल. In this table, you can see the difference in the one paper in 3 universities. First of all, the nomenclature given by NCT is language across the curriculum. It is different in 3 universities: Punjab University, Punjabi University, and Ajinde University. The second one, nomenclature doesn't matter. The second part is mark. You can compare. It is almost equal in first two, 50-50. But in third one, there is a 50 marks, but they have clubbed 2 papers in one paper. Language across the curriculum and one more paper, the both papers are clubbed and given only 50 marks. So they have given very less importance as compared to other 2 universities. The third one is division of syllabus. The first university has 2 units and 6 subparts. Second has 2 units and 5 subparts. The third one has 4 units and 12 subparts. It shows how much content is given in different universities. And the most problematic thing is the difference in objective of 3 universities. Objective set the tone of everything. जैसे आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, वैसे आपकी ट्रांजैक्शन प्रैक्टिसेस होंगी, वैसे आपके असेसमेंट क्राइटेरियाज होंगे. You just see the table. There is a big gap in 3 universities of one paper. Language across the curriculum. NCT has different objective, Punjab University has different, Punjabi has different, and GND has different type of objective for only single paper. जो स्टूडेंट पंजाब से पढ़ेगा, पंजाबी से पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा, वो पंजाब में कहीं भी टीच कर सकता है. तो एक जगह से कुछ और लर्न करके आए, सेकंड प्लेस से कुछ और, थर्ड प्लेस से कुछ और. देयर इज नो harmony between the curriculum of 3 basic universities. Then comes the session work. As I have already said, जैसे ऑब्जेक्टिव होंगे वैसे ही असेसमेंट क्राइटेरिया होगा. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सेशनल वर्क. इन द सेकंड यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, देयर इज नो सेशनल वर्क. द थर्ड वन, द सेकंड पॉइंट इज जब करिकुलम ऊपर से बन के आया, जब यूनिवर्सिटी के करिकुलम प्लानर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सेकंड प्रॉब्लम आई लैक ऑफ थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन अमंग द टीचर एजुकेटर्स.
अब एक यूनिवर्सिटी के टीचर एजुकेटर उस पेपर को किसी और वे से परसीव कर रहे हैं, सेकंड किसी और वे से, थर्ड वन किसी और वे से। पेपर एक है, एनसीटी का मॉडल करिकुलम एक बात कर रहा है। देन लो क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शनल प्रैक्टिसेस, देयर इज नो गुड रेफरेंस मटेरियल इन करिकुलम। जो भी गूगल बाबा से मिलता है वो गूगल बाबा से उतारते हैं और टीच करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उसको कोई प्रूव नहीं कर रहा। इस सेशन में, इस हाउस में ये बात उठी थी, उसमें शायद वर्ड यूज किया था नॉलेज। मैं उस वर्ड से सहमत नहीं हूँ। कभी भी ज्ञान नहीं होता इंटरनेट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज अ लोएस्ट स्टेज। इंफॉर्मेशन से आगे जाके नॉलेज विजडम बनता है। यहाँ पे नॉलेज बोला गया था, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। सो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वही इंफॉर्मेशन पास हो रही है। उसमें टीचर एजुकेटर ना तो अपने आप को कॉम्पिटेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि तीनों यूनिवर्सिटी के टीचर एजुकेटर्स उस तीनों एक पेपर को 3 वे से परसीव कर रहे हैं। Then comes lack of any platform for discussion. In last 2 years, in these 2 or 3 universities, there is no symposium, there is no seminar, there is no workshop to solve the problems emerged from this paper. Then comes the negative attitude of senior faculty. अब क्या होता है, जब कोई नया रिक्रूटी आता है, कोई नया टीचर आता है, तो सबसे पहले जो डिफिकल्ट पेपर होता है, नया पेपर होता है, वो किसको दिया जाता है? जो सबसे नया आता है। इसका उल्टा होना चाहिए। जिस टीचर को 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, ही शुड असिस्ट अ न्यू टीचर, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो कहीं से कलेक्ट कर सकता है। लेकिन रिवर्सल होता है, इट इज अ स्टोरी इन ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन। देन देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे मैंने पहले बात की, रेफरेंस मटेरियल नहीं है। अगर रेफरेंस में कोई बुक डाल रखी है, वो इंटरनेट पे 3000, 4000, 5000 रुपये में मिल रही है, जो बच्चा एक्सेस नहीं कर सकता, किसी कॉलेज में नहीं पहुंच रही। और उसके बाद जो लो क्वालिटी बुक्स ऑथर्स लिख रहे हैं, जहां से मिली, एक बुक साउथ में पब्लिश हुई है, मैंने 200 रुपये खर्च किया, वो पंजाब में मंगवा ली, उसका थोड़ा सा चेंज किया, पंजाब में पब्लिश कर दी। नाउ देयर इज अ मार्केट, पब्लिशर को चाहिए, बच्चे कम है, नॉन अटेंडिंग सिस्टम है, उसको पता है कि जैसी भी लिखी है मैंने सेल करना है। दिस इज द हार्ड ट्रूथ इन एजुकेशन कॉलेजेस। देन प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेपर सेटर। अब देखिए, जो एक चीज गलत शुरू होगी वो कहां तक जा रही है। अब पेपर सेटिंग में क्या प्रोसीजर है? पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग पंजाबी का पेपर बना रहे हैं, पंजाबी वाले जीएनडीयू के पेपर बना रहे हैं, इंटर यूनिवर्सिटी पेपर्स। अब एक यूनिवर्सिटी में पेपर किसी और वे से परसीव किया, पेपर बनाने वाले ने उसी जैसे पेपर को फॉर्म किया। जैसे आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव में है स्केमा थ्योरी, और दोनों में स्केमा थ्योरी नहीं है। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टीचर पेपर बना रहा है लैंग्वेज का, उसके माइंड में क्या परसीव कर रहा है? स्केमा थ्योरी। वो हर एक बात में स्केमा ढूंढ रहा है, क्या का स्केमा। उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। अब पेपर चेक कैसे चेक होते हैं? दिल्ली में बैठे, मान लो कटघरिया में बैठा है एक टीचर, उसने और वे से पेपर को टीच किया है, वो एक्सपेक्ट कैसा करता है कि ऐसा ही पेपर किसी और रीजन में, दिल्ली में अगर दूसरी यूनिवर्सिटी है तो उसमें जो टीचर ने टीच किया, मेरे वाला तो पेपर में बच्चे ने लिखा नहीं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इवैल्यूएशन। जैसा आता है तो क्या होता है, आप फेल करने से भी डरता है टीचर एजुकेटर। वो क्या दे रहा है? एवरेज मार्क्स। मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं पहले ही बोला था, द पेपर इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड द फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। Then comes suggestions. प्रॉब्लम तो बहुत है, उसका सजेशन भी कोई ना कोई होना चाहिए। अगर टाइम लगा, मैं सिर्फ 2 मिनट, आई थिंक 10 मिनट के अराउंड ही हुआ होगा, सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गुड करिकुलम प्लानिंग। जैसे पहले ही बात हुई, जब कोई प्लानिंग होती है तो कोई ना कोई पर्सन अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। 2 वेज होते हैं, एक हायर लेवल से लोअर लेवल, एक लोअर लेवल से ग्रेस रूट से हायर लेवल, और हायर लेवल से ग्रेस रूट। जब ऐसा कोई नया सिलेबस बन रहा है, अगर कोई सिलेबस बना है तो एजुकेशन कॉलेज से फीडबैक लिया जाए, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 2 इयर्स में एक करिकुलम फिट होता है, और 2 इयर्स के बाद बात चल रही है कि 2 ईयर बीएड बंद होने वाली है और 4 ईयर शुरू होने वाली है। ये बहुत से पॉइंट्स हैं सजेशंस के, जिनको अडॉप्ट करके किसी ना किसी वे से इस पेपर की जो दुर्दशा हो रही है, जैसे हमने ये सेमिनार लैंग्वेज पे किया है, मेरा यहाँ आने का मेन पर्पस भी यही था कि दिल्ली में अगर कोई वॉइस रेज की जाए तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स बहुत बैठे होते हैं, शायद उनके कानों तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। पंजाब के एक रीजन में बैठे वो आवाज़ शायद ना पहुँच पाए। सो दीज आर द डिस्क्रिपेंसीज इन द करिकुलम। जब करिकुलम ऐसा फॉर्म किया है, उसकी वैसे ही ट्रांजैक्शनल प्रैक्टिसेस होंगी, वैसे ही उसकी असेसमेंट होगी। बहुत सी बातें हुई थी, एक गौरव जी भी बात शुरू करके गए थे, मुझे इकबाल की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, उसको थोड़ा सा एडिट करूँगा। वतन की फिक्र कर नादां,
वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे एजुकेशन वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे एजुकेशन वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। धन्यवाद सर, आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से जो दिवसीय पाठ्यक्रम यानी शिक्षा शास्त्र में जो भी समस्याओं के साथ सीधा साक्षात संबंध कराया और कुछ सुझाव भी दिए हैं जो पाठ्यक्रम में अनेक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के, क्योंकि एक चीज खत्म नहीं होती उससे पहले दूसरी चीज शुरू हो जाती है, सबसे बड़ी समस्या यही से शुरू होती है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। आगे हैं सर, इतनी सेमिनार अटेंड करें जो भी है, मैं एक सेल्फ अटेंडिंग कॉलेज की लेक्चरर हूँ फरीदाबाद में। जो नॉन अटेंडिंग जो प्रॉब्लम है बीएड में, ये तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हो चुका है। दूसरी बात है ये जो आईसीटी, कल भी मैंने पता कही था, आईसीटी तो बाद में बार हर जगह पे क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, कोई भी सेमिनार ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे 4 ईयर या 2 ईयर करिकुलम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। हम लोग टीचर एडुकेटर कॉन्फ्रेंस नहीं है कि क्या होने वाला है हमारे नेट, कभी हमारा डिग्री को लेके नेट होना चाहिए, पीएचडी नहीं होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, नेट नहीं होना, एपीआई बनेगा नहीं बनेगा, कितना कॉम्प्लिकेशन, ये तो एक डामाडोल चल ही रहा है। साथ के साथ टीचर एडुकेटर कहाँ से इतना अवेयरनेस क्रिएट करेगा? एक तो बच्चा नहीं है तो हमें ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कितना आता कहाँ से? जब क्वालिटी क्वालिटी, ये क्वालिटी तो हो ही नहीं सकता जहाँ पे बच्चा नहीं है, ना कोई ब्रिज बनेगा, ना कोई कम्युनिटी। तो बस सेमिनार वर्कशॉप, हमारा सर्टिफिकेट एक अच्छा और हमारा एपीआई क्या बनेगा ना बनेगा उसके ऊपर है। क्योंकि मेरा तो नेगेटिव इसलिए क्योंकि बाकी कोई भी डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं है जितना टीचर एडुकेटर, एनसीटी, एनसीए, पीओए